کیا پاکستان واقعی ڈیفالٹ کر گیا ہے یا ڈیفالٹ کرنے والا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے جو پاکستان میں بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں۔ اس کی تمام انفارمیشن ہم نے اکٹھی کی ہے اور بالکل آسان زبان میں آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ پاکستان کو اس وقت کن حالات کا سامنا ہے اور یہ ملک کیا ڈیفالٹ کر چکا ہے، اور جو ماہر معیشت کہہ رہے ہیں ان کی باتوں میں کتنی صداقت ہے۔ دونوں طرف سے مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں، لیکن جو ایکچوئل پکچر ہے، جو فیکٹس ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ڈیفالٹ ہوتا کیا ہے، کوئی ملک کیسے ڈیفالٹ کر سکتا ہے یا ملک دیوالیہ کیسے ہوتا ہے۔ کسی ملک کے دیوالیہ ہونے کے بارے میں جو معیشت کے ماہرین ہیں، جو اکانومی کو سمجھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایک ملک جب اپنے بیرونی قرضے کی قسطیں اور اس پر سود کی ادائیگی نہ کر سکے تو اس ملک کو دیوالیہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ نہ اپنی قسطیں ادا کر سک رہا، قرضہ نہیں اتار پا رہا اور سود کی ادائیگی بھی نہیں کر پا رہا، اور اس کی کچھ علامات بھی ہوتی ہیں۔ یعنی یہ پیمنٹس روک دیتے ہیں، جو آپ کی امپورٹ آپ کر رہے ہوتے ہیں، دنیا سے چیزیں منگوا رہے ہوتے ہیں، ان کی پیمنٹس آپ روک دیتے ہیں، آپ کا ملک ادائیگیاں بند کر دیتا ہے دوسرے ملکوں کو یا کمپنیز کو۔ تو یہ اس کی علامات ہوتی ہیں۔ ایک ملک کے دیوالیہ ہونے کی پہلے جو علامات ظاہر ہوتی ہیں، ان میں سب سے بڑی علامت ہے کہ کسی ملک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر، یعنی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس جو پیسہ پڑا ہوا قومی خزانے میں جو ہے وہ کم ہو جائے، اور ان کے مقابلے میں بیرونی قرضوں کی کتنی قسطیں اور ان پر سود کی کتنی ادائیگی ہونی ہے۔ یہ چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، خسارہ ملک کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جو قسطیں ادا کرنی ہے وہ ادا کرنے کے ملک قابل نہیں رہا۔ جب ملک کے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بہت زیادہ بڑھ جائے اور زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہوں، اور اس کے مقابلے میں بیرونی قرضے کی قسطیں اور ان پر سود کی ادائیگی ایک مسئلہ بن جائے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ جب کوئی ملک دیوالیہ ہونے والا ہوتا ہے یا بہت قریب پہنچ جاتا ہے تو اس کی جانب سے بین الاقوامی مارکیٹ میں قرضے لینے کے لیے جاری کیے جانے والے جو بانڈز ہیں، وہ ان کے اوپر سود بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی ان کو زیادہ سود کے اوپر پیسہ ملتا ہے پھر اس ملک کو۔ یعنی ملک کو ان بانڈز میں انویسٹمنٹ کرنے والوں کو زیادہ منافع دینا پڑتا ہے سود قیمت کے اندر، اور بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں کی جانب سے اس ملک کی ریٹنگ کم کر دی جاتی ہے۔ یعنی ہارے ہوئے گھوڑے پہ کوئی پیسہ نہیں لگاتا، ہارا ہوا گھوڑا جو ہے اس کے اوپر لوگ پیسہ نہیں لگاتے۔ میں آسان آپ کو بتا رہا ہوں، تو اگر لگاتے ہیں تو لوگ اس کے اندر زیادہ منافع چاہتے ہیں۔ یعنی جو لوگ سٹا کھیلتے ہیں یا جوا کھیلتے ہیں، ان کو پتہ ہے جو ٹیم کمزور ہوتی ہے، جو اس پہ پیسہ لگا کر جیت جائے وہ زیادہ پیسہ بنا لیتا ہے۔ تو اسی طرح جس ملک کی اکانومی ڈاؤن جا رہی ہوتی ہے، اس کو جب بانڈز ملتے ہیں تو اس کے اوپر زیادہ سود ہوتا ہے۔ وہ جو لوگ بانڈ خریدتے ہیں ان کو زیادہ منافع کی لالچ دی جاتی ہے، تب وہ بکتے ہیں مارکیٹ میں۔ دیوالیہ ہونے کے اثرات کیا ہوتے ہیں جب آپ خدا نخواستہ دیوالیہ ہو جائیں؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ دیوالیہ ہو رہا ہے ملک۔ نمبر ایک، اس کے قرضے بہت زیادہ لگاتار بڑھ رہے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر کیپیسٹی لگاتار کم ہو رہی ہے، اس کے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کا جو خسارہ ہے وہ بھی، نقصان بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ ملک اب بین الاقوامی طور پہ نہ قرضے ادا کر پا رہا ہے، نہ سود ادا کر پا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو چیزیں امپورٹ کرتا ہے باہر سے، اس کے اوپر جو پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں وہ بھی وہ ملک روک دیتا ہے۔ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کیا کر رہا ہے۔ منفی اثرات یہ ہوتے ہیں، اگر آپ دیوالیہ ہو گئے خدا نخواستہ تو اس کے اثرات کیا پڑیں گے، لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں۔ اس کا جواب میں آپ کو دینے لگا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ عالمی منڈی میں ملک کی کریڈٹ ریٹنگ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، یعنی دنیا جو آپ کو ادھار پہ چیزیں دیتی ہے کریڈٹ کے اوپر، وہ دینا بند کر دیتی ہے، اور عالمی اداروں اور دوسرے ممالک کی جانب سے مزید قرضے کی سہولت بھی نہیں ملتی۔ اور اس کے بعد ایک ایسا ملک جو قرضوں پہ چلتا ہے، اس کے لیے عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے قرضے کی سہولت بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ اس ملک کی معیشت چل سکے، تو پھر وہ بالکل ہی ڈاؤن چلا جاتا ہے، قرضہ بھی ملنا بند ہو جاتا ہے۔ دیوالیہ ہونے کی صورت میں شدید نتیجہ یہ برآمد ہو سکتا ہے کہ ملک سے جانے والا تجارتی مال ضبط کر لیا جائے، اور آپ کے ملک کے ہوائی جہاز، آپ کے ملک کے بحری جہاز کسی دوسرے ملک میں قبضے میں لے لیے جائیں۔ یہ اثرات بھی ہوتے ہیں اگر کوئی ملک دیوالیہ کر جائے۔ دیوالیہ ہونے کی صورت میں کرنسی کی قدر روزانہ کی بنیادوں پر بہت تیزی سے گرتی ہے، اتنی تیزی سے گرتی ہے جیسے وینزویلا میں ہوا تھا۔ وہاں صورتحال، جب ان کا ملک دیوالیہ ہوا تو صورتحال یہ تھی کہ ان کی کرنسی سڑکوں پہ پڑی ہوئی ہوتی تھی، اور لوگ اوپر سے چل کر جا رہے ہوتے تھے، وہ بالکل کاغذ کے ٹکڑے تھے بے وقت، اس کرنسی کی ویلیو بچی نہیں تھی۔
ये हुआ था वेनेजुएला की करंसी के साथ। पाकिस्तान के ज़िम्मे जो वाजिबुल अदा रकम है इस वक्त वो क्या है, यहां से आपको आइडिया होगा कि हम डिफॉल्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 3 साल में पाकिस्तान के ज़िम्मे 73 अरब डॉलर का कर्जा है, यानी 73 अरब अमरीकी डॉलर्स पाकिस्तान ने 3 साल के अंदर अदा करने हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के मुल्क के पास जो टोटल ज़र मुबादला के ज़खायर पड़े हुए हैं या ख़जाने में टोटल पैसा पड़ा हुआ है वो 6.7 अरब अमरीकी डॉलर है। और इनमें से लगभग 6 अरब डॉलर या इससे कुछ ज़्यादा रकम जो है वो हमने वो रखी हुई है अपने अकाउंट्स के अंदर जिनको हम खर्च नहीं कर सकते। ये हमारे दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अंदर रखी हुई है और ये उनका पैसा है और हमने सिर्फ अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को स्टेबल करने के लिए पैसा उनसे लिया हुआ है। हम इस रकम को मुबैना तौर पे खर्च नहीं कर सकते। कर्ज़ों की अदायगी मुमकिन बनाने के लिए इस माली साल में पाकिस्तान को, ये जो अभी चल रहा है और ये जाएगा जून तक, इस वक्त तक पाकिस्तान को 28 अरब डॉलर दरकार है, जबकि पाकिस्तान के खजाने में कितने हैं 6.7 अरब डॉलर और बहुत तेज़ी से ये गिरा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये कितना था, ये मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ ताकि साथ साथ आप इसको समझते भी जाएं। ये तस्वीर आपको बता रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जब मार्च 2021 था तो 13 अरब अमरीकी डॉलर पाकिस्तान के खजाने में थे और ये बढ़ गए थे PMLN की हुकूमत के जाने के बाद। अगस्त 2021 में ये अमाउंट बढ़ गई थी 20 अरब अमरीकी डॉलर तक और मार्च 2022 में ये अमाउंट पहुंच गई थी 16.2 अरब अमरीकी डॉलर तक। और वो ऐसे पहुंची थी कि बैनुल-अक़वामी तौर पे एकदम कीमतें बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ों की, पेट्रोल की, गैस की, इन चीज़ों की, तो वहाँ पाकिस्तान ने पैसा निकाला ज़र मुबादला के ज़खायर में से, गरीबों को सपोर्ट देने के लिए अंदर डाला, तो वो 16.2 अरब डॉलर रह गए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के पास सिर्फ 6.7 अरब डॉलर हैं, यानी 10 अरब डॉलर पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 7 महीनों के अंदर खर्च कर दिए हैं और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा करने की बजाय लगातार कमी हो रही है। ये पाकिस्तान के साथ हुआ है। 28 अरब डॉलर हमने देने हैं इस साल में, माली साल के अंदर, जिसके चंद महीने गुजर गए हैं और बाकी जो महीने रह गए हैं, एक ये दिसंबर का और 6 महीने, अगले 6 महीने के अंदर पाकिस्तान ने 28 अरब डॉलर देने हैं कर्जे के और ये रकम बढ़ के अगले साल 32 और उससे अगले साल जो है 29 अरब डॉलर हो जाएगी। तवानाई के शोबे का खतरा पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान में जितने ये जो पावर प्लांट लगाए गए हैं पीपल्स पार्टी के और PMLN के दौर में, बजाय इसके कि डैम्स बनाते या बिजली का इस्तेमाल कम करते या कौमी बचत करते और तरीके से चलते या ऐसी बिजली बनाते जो सस्ती बनती, बड़े बड़े रिश्वत लेने के लिए, बड़ा बड़ा पैसा कमाने के लिए ऐसे पावर प्लांट लगाए गए जो बहुत महंगी बिजली पैदा करते हैं और वो पावर प्लांट चलें या ना चलें, ऐसे मुआहदे किए गए कि उनको हर हाल में पेमेंट करनी पड़ती है। तो वो पाकिस्तान इस मामले को हल नहीं कर सका और पीपल्स पार्टी और PMLN के दौर में लगे हुए ये मंसूबे पाकिस्तान को इतना महंगा पड़ रहे हैं कि गर्दिशी कर्जे इसके ऊपर, क्योंकि बिल जो लोग देते हैं उससे ये पैसा पूरा होता ही नहीं है। बिजली बनती महंगी है, बिकती सस्ती है और अब तक लगातार पाकिस्तान इसमें खसारे में जा रहा है। और ये जो गर्दिशी कर्जा बन जाता है इसमें वो 2500 अरब रुपए से तजावज़ कर चुका है। अगर पाकिस्तान की मईशत को डबोने के लिए सिर्फ ये अकेला शोबा ही काफ़ी है। इसमें भी मेहरबानी पीपल्स पार्टी और PMLN के तजर्बाकारों ने पाकिस्तान के ऊपर की थी। अच्छा, तवानाई के शोबे में हिकमत अमली के साथ अगर पाकिस्तान काम ना कर सका और आगे इसको बेहतर ना कर सका तो पाकिस्तान डेफिनेटली खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। पाकिस्तान को एक और बहरान है, पाकिस्तान की करेंसी लगातार डिस्टेबल है, वो स्टेबल नहीं हो रही और पाकिस्तान को उन मुल्कों के अंदर शामिल किया गया है जो इस वक्त करेंसी के ख़तरनाक बहरान से शामिल हैं, यानी टॉप 7 मुल्कों के अंदर पाकिस्तान शामिल है। और डॉक्टर हफीज़ पाशा ने कहा है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को जिन मुल्कों की फहरिस्त में रखा गया है, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की माशी हालात किस कदर ख़राब हो चुके हैं। पाकिस्तान की बार बार जो क्रेडिट रेटिंग है वो लगातार गिरती जा रही। आलमी इदारे हैं कुछ, वो आलमी सतह पे गाइड करते हैं कि इस मुल्क के साथ कितना कारोबार करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। उसको देखकर लोग उस मुल्क को पैसा देते हैं या उसमें इन्वेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे 2 जो बड़े इदारे हैं उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं या वो जो रिपोर्ट्स छाया करते हैं उनके मुताबिक फैसला होता है। मूडीज़ की एक रिपोर्ट होती है, एक फिच उनकी भी एक क्रेडिट रेटिंग होती है, वो पाकिस्तान को मज़ीद नीचे करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान ने इसको मुस्तरद कर दिया है सागडार साहब ने, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ खबर। उनकी नई रेटिंग के मुताबिक मूडीज़ ने
खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग के अंदर पाकिस्तान को B3 से कम करके CAA1 कर दिया है, और ये बहुत ख़तरनाक है, अलार्मिंग है। इसी तरह बैनुल अक़वामी इदारे फिच ने पाकिस्तान की जो माशी दर्जाबंदी है उसको भी मज़ीद नीचे धकेल दिया है। अब पाकिस्तान उठ कैसे सकता था? जो चीज़ें पाकिस्तान को उठा सकती हैं उनकी हालत ज़रा आप मुलाहिज़ा फरमाइए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, जो बाहर से पैसा भेजते हैं, वो पाकिस्तान के लिए एक ऑक्सीजन होता है, वो लगातार कम होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। टेक्सटाइल जो पाकिस्तान की बरामदात का कुल 60% है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, जितना पाकिस्तान बाहर पाकिस्तान चीज़ें बनाकर भेजता है उसी से तो डॉलर आते हैं ना, हमें डॉलर ही चाहिए, तो वो पाकिस्तान की बरामदात का कुल 60% है। अक्टूबर में इसमें 15% की कमी हुई है और नवंबर में उसके बाद दोबारा इसमें 25% की कमी हुई है। रोशन डिजिटल अकाउंट जो इमरान खान साहब ने शुरू किया है, इसमें हर महीने 3% की कमी लगातार होती चली जा रही है। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, ये शब्बर जैदी साहब ने क्लेम किया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं। डॉलन्स कंपनी आप जानते हैं पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके CEO ने ये कहा है कि अगर LCs ओपन नहीं की जाती, LC होती है कि अगर आपने बाहर से कुछ सामान मंगवाया है तो आप एक LC के तौर पे मंगवाते हैं कि जी हमने ये पेमेंट आपको करनी है, ये पेमेंट पड़ी हुई है, आप सामान भिजवा दें, ये पेमेंट हमारा मुल्क आपको कर देगा। तो इस तरह वो पेमेंट हो जाती है, हमारे मुल्क से ये पेमेंट आपको हो जाएगी। वो जैसे ही सामान आता है, आपके कंटेनर आके लगते हैं आपके मुल्क में, आपके हैंडओवर सामान होता है और वहाँ पे वो पैसा जो है वो उस कंपनी के अकाउंट में या उस मुल्क के अकाउंट में जिसने वो सामान भेजा होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरह से ये LCs काम करती हैं। LCs ओपन करने से रोक दिया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, लगातार इसको रोक दिया है कि अब LCs खोली नहीं जा रही। अब इसमें LCs अगर नहीं खोली जाती, द कंपनी विल बी फोर्स्ड टू फायर अ फर्दर 2000 एम्प्लॉयज़। उन्होंने कहा हम अपने 2000 बंदे मजीद फारग कर देंगे अगर इस हुकूमत ने LCs को ना खोला, तो हम मजबूर हो जाएंगे। और उन्होंने कहा हम हर महीने 500 मिलियन यानी 50 करोड़ का नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं, और पहले भी उन्होंने 1000 बंदा निकाल दिया था। ये है जी सूरत हाल। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान के पास जो है वो 2014 के बाद से लेकर अब तक सबसे कम ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए हैं, और पाकिस्तान के पास बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया अपनी पेमेंट्स करने के लिए। शौकत तरीन साबिक वज़ीर ख़ज़ाना क्या कह रहे हैं? द स्टेट बैंक रिजर्व हैव ड्रॉप्ड बाई ऑलमोस्ट 10 बिलियन सिंस VONC। वो कह रहे हैं जब से ये रजीम चेंज हुआ उसके बाद से लेकर अब तक 10 अरब रुपए ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान के कम हो गए हैं, डॉलर्स, 10 अरब अमरीकी डॉलर्स। और उन्होंने कहा है जी कि बिजनेसेस जो है पाकिस्तान के अंदर वो रुक गए हैं क्योंकि LCs ओपन नहीं की जा रही, और जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है वो 90% से ज़्यादा हो चुका है। ये चीज़ें बता रही हैं कि डिफ़ॉल्ट के करीब हैं या डिफ़ॉल्ट वाला मामला है। और उसके बाद वो कहते हैं रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल तौर पे फेल हो गया है, फौरी तौर पे नए इलेक्शन करवाए जाएं। असद उमर क्या कह रहे हैं कि 784 मिलियन रिडक्शन इन स्टेट बैंक रिजर्व दिस वीक, कि सिर्फ इस हफ्ते के अंदर 784 मिलियन कम हुआ है। यानी इसको अगर आप ये कहें कि लगभग 80 करोड़ अमरीकी डॉलर्स पाकिस्तान के ज़खायर जो हैं कौमी, उनके अंदर से सिर्फ एक हफ्ते के अंदर कम हो गया है। और इतना कम सिर्फ इससे पहले 2014 में हुआ था, यानी ये 2014 में हुआ था, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो तब ये हुआ था। और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि बड़ी डेंजरस सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान को। पाकिस्तान डिफ़ॉल्टिंग ऑन ड्यू एक्सटर्नल पेमेंट्स ऑन अ डेली बेसिस, पाकिस्तान रोज़ाना की बुनियाद की ऊपर जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। अब ये असद उमर साहब का एनालिसिस है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ शब्बर जैदी साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, और ये FPR के साबिक चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा टेक्निकली पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है। मौजूदा हुकूमत के आते ही मईशत की सिमत दूसरी तरफ चली गई थी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और शौकत तरीन मेरे हिसाब से गलत बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास पेमेंट करने के कोई पैसे नहीं हैं। अब हमारे पास IMF की तमाम शर्तें मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। डिफ़ॉल्ट दो तरह का होता है, एक ये होता है कि रियासत अपने कर्जे नहीं दे सकती, और दूसरा डिफ़ॉल्ट वो होता है जिसमें रियासत इंपोर्टर्स को डॉलर नहीं दे सकती। वो तो हम नहीं दे पा रहे। कानून के मुताबिक इंपोर्टर्स के लिए इंपोर्टर्स को डॉलर फराहम किए जाते हैं इंपोर्ट के लिए। पाकिस्तान इस वक्त टेक्निकल तौर पर डिफ़ॉल्ट कर चुका है। पाकिस्तान की 4.5 अरब डॉलर की LCs इस वक्त पेंडिंग पड़ी हुई हैं जिनको नहीं खोला जा रहा।
स्टेट बैंक इन एलसीज को खोलने की इजाज़त नहीं दे रहा, बैंकों को सिर्फ मखसूस एलसीज खोलने की इजाज़त दी जा रही है। इसका मतलब है हम टेक्निकल तौर पे डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। इसहाक डार साहब कहते हैं कि रियासत ने अभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया। तो क्या ये सारा कुछ एक सियासी खेल खेला जा रहा है? शौकत तरीन भी इसी सियासी खेल का हिस्सा बन रहे हैं, ये अफसोस है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल दुरुस्त कहते हैं कि हमारे पास कोई चॉइस बाकी नहीं बची। इसहाक डार जो कह रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल $32 अरब का इंतज़ाम करके नहीं गए, इसका मतलब यह है कि इस वक्त मिफ्ता इस्माइल या शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे थे कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है, वो सच नहीं था। इस वक्त हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होगी कि 6 बजे तक सारी मार्केटें बंद कर दी जाएं, सिर्फ ज़रूरी एलसीज खोलने की इजाज़त दी जाए, और वो तो पहले ही हो चुका है। उसके अलावा पेट्रोल के इजाफी इस्तेमाल को फौरी तौर पर बंद किया जाए और पाकिस्तान बिल्कुल एक पुराने दौर में चला जाए, जैसे 90s में या 80s में था। बिल्कुल सादगी अपना ले, हर चीज़ छोड़ दे। लोग जो हैं वो बिल्कुल एक गाड़ी के अंदर 4-4 बंदे जाएं, बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल बंद हो जाए। लेकिन क्या अशराफिया इस बात के ऊपर मानेगी? इस तरह तो पाकिस्तान से पैसा और बाहर निकल जाएगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से $4.2 अरब मांगे हैं। अब सऊदी अरब पाकिस्तान को इस वक्त पैसे देता है या नहीं देता, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है, इसका इंडेक्स -4% पे आ गया है। -4% पे आ गया है। ये ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जानिब से सितंबर 2022 से अक्टूबर 2022 के दौरान एक सर्वे किया गया। अब उसकी रिपोर्ट आई है, वो ये बता रही है कि मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत के दौर के अंदर पाकिस्तान मनफी चला गया है, -4% पे चला गया है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सरमायाकारों को सरमायाकारी करने में पॉजिटिव पे तो दूर की बात है, मनफी दिलचस्प है कि हमने करनी नहीं है, बाकियों को भी मना करो इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी ना करें, ये किया जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो टोटल कर्जा है वो 50,152 अरब रुपए है। इसमें से 7,200 का कर्ज सिर्फ पिछले 7 माह में हासिल किया गया है। यानी पाकिस्तान ने जितना कर्जा हासिल किया उसका तकरीबन 17% कर्जा सिर्फ पिछले 7 महीनों में शहबाज शरीफ ने हासिल किया है। कर्जा लगातार पाकिस्तान को मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान कर्जे उतारने के काबिल नहीं है। दिस इज कॉल्ड यानी डिफॉल्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है, लेकिन पाकिस्तान उस तरफ खुदा न खास्ता बढ़ रहा है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर के महीने के इख्तिताम पर वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे वाजिबुल अदा कर्ज 40,000 अरब रुपए था। मरकजी बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक सिर्फ एक महीने में यानी सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर के इस महीने में कर्जे में 750 अरब का इजाफा हुआ है। टेक्सटाइल के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। जबकि जाते जाते एक आखिरी खबर जो बहुत बुरी है वो भी बताता हूं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एयरलाइंस को $225 मिलियन की अदायगी से रोक रहा है। ये किसी भी मुल्क की तरफ से एयरलाइन के पास यानी अदरक हम नहीं ले पा रहे, लहसुन नहीं ले पा रहे, प्याज के कंटेनर खड़े हैं, पाकिस्तान एलसीज नहीं खोल रहा, पाकिस्तान पेमेंट नहीं कर पा रहा, बल्कि लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं। पाकिस्तान खुदा ना खास्ता टेक्निकली डिफॉल्ट हो गया, ये शब्बर जैदी साहब कह रहे हैं। सिचुएशन काफ़ी वर्स है, इसको संभालना है तो सबको मिलकर संभालना पड़ेगा। पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर को किरदार अदा करना पड़ेगा, वरना खुदा ना खास्ता हम और ज़्यादा लगातार नीचे चले जाएंगे। अब तक इतनी